गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी टॉपिक को आज भी हम कंटिन्यू रखेंगे फ्रॉम द पेज नंबर 91 फ्रॉम योर बुक। फ्रॉम हेयर इन द चैप्टर ऑन द लेजिस्लेचर you will study in detail the various mechanisms through which the parliament controls the executive. But remember that the most important feature of parliamentary executive is that the executive is routinely under the control and supervision of legislature. अब स्टूडेंट आपने जो है लेजिस्लेचर वाला जो चैप्टर है उसमें विधायिका वाले चैप्टर में आप विस्तार से उन तरीक़ों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें ये पता चले कि संसद कार्यपालिका को किस तरीके से कंट्रोल करती, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को वो जो कंट्रोल में करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देख रेख में रहती है। मीन्स कि एग्जीक्यूटिव जो है अगर हम देखें तो वो टोटली जो है किसके देख रेख में रहती है, जो कार्यपालिका है वो कॉन्टिन्यू जो है विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। दिस प्रोविजंस मीन्स दैट द मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस of the Lok Sabha is obliged to resign. The principles indicates that the minister is an executive committee of the parliament and it collectively governs on behalf of the parliament. Collective responsibility is based on the principle of the solidarity of the cabinet. It implies that a vote of no confidence, even against a single minister, leads to the resignation of the entire council of ministers. It also indicates that if a minister doesn't agree with a policy or decision of the cabinet, he or she must either accept the decision or resign. It is binding on all ministers to pursue or agree to a policy for which there is a collective responsibility. अब स्टूडेंट मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी माना गया है। अगर हम देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। और इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे क्या करना पड़ता है, उसे रेजिग्नेशन देना पड़ता है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद क्या करता है, संसद की एक कार्यकारी समिति और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करता है। अब कलेक्टिवली गवर्नेंस जो है मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो जितने भी मंत्री हैं उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। और साथ ही इसका यह मीनिंग भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत ना हो तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वीकार करने के साथ साथ जो उसे त्यागपत्र भी दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए ज़रूरी है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर enjoys a preeminent place in the government. The Council of Ministers cannot exist without the Prime Minister. The Council comes into existence only after the Prime Minister has taken the oath of office. The death or resignation of the Prime Minister automatically brings about the dissolution of the Council of Ministers. But the demise, dismissal, or resignation of a minister only creates a ministerial vacancy. The Prime Minister acts as a link between the Council of Ministers on the one hand and the President as well as the Parliament on the other. It is this role of the Prime Minister which led Pandit Nehru to describe him as the linchpin of government. It is also the constitutional obligation of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation. The Prime Minister is involved in all crucial decisions of the government and decides on the policies of the government. Thus, the power wielded by the Prime Minister flows from various sources: control over the Council of Ministers, leadership of the Lok Sabha, command over the bureaucratic machine, access to media, projection of personalities during elections, projection as national leader during international symmetry as well as foreign visits.
अब भारत में जो है प्रधानमंत्री का सरकार में सबसे ज़्यादा जो है स्थान क्या माना गया, प्रीएमिनेंट माना गया, प्रीएमिनेंट प्लेस माना गया है। भारत में का जो प्रधानमंत्री होता है उसका स्थान जो सर्वोपरि है, और बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आते हैं जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। और स्टूडेंट, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। तो प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा भी दी थी। और प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित भी करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होता है और सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी जो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ही लेता है। तो इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स हैं उसके काफ़ी सोर्सेज हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करना है, लोकसभा का नेतृत्व करना है, या अधिकारियों पर अपना आधिपत्य जमाना है, और मीडिया तक पहुंच है, चुनाव के द्वारा उसके व्यक्तित्व का उभार है, तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। मीन्स की जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी डिसीजन तो ले सकता है, उसके साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी सारी पावर्स हैं, और उस पावर के जो है काफ़ी सारे सोर्सेज भी हैं। उसमें चाहे आप कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, या लीडरशिप ऑफ द लोकसभा हो, या कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन पर जो कमांड है वो भी प्राइम मिनिस्टर की ही पावरफुल है, या टू मीडिया तक पहुँच हो, और या फिर इलेक्शन के टाइम पर जो चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट फेस टू फेस जो है जनता से मिलते भी हैं, और पोजीशन एज द नेशनल लीडर, और इसके साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि, ये सब इसी में काउंट होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को जो है काफ़ी सारी पावर्स मिली हुई है। इसी वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर जो है एक अच्छी प्रीएमिनेंट पोजीशन जो है सरकार में पाता है। However, the power which the Prime Minister wields and actually puts into use depends upon the prevailing political conditions. The position of the Prime Minister and Council of Ministers has been inaccessible whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha. However, this has not been the case when government have been led by coalition of political parties. Since 1989, we have witnessed many coalition governments. In India, many of these governments couldn't remain in power for the full term of the Lok Sabha. They were either removed or they resigned due to loss of support of the majority. These developments have affected the working of the parliamentary executive. लेकिन अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की जो पावर है और उनका जो प्रयोग है वो तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की जो भी शक्तियां हैं, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो है आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो भी शक्तियां हैं, जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां जो हैं निर्विवाद रही हैं, उन पर कोई विवाद नहीं हुआ है। परंतु जब राजनीतिक दलों की गठबंधन की सरकारें बनी हैं तब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि स्टूडेंट जब राजनीतिक दलों में आपस में जो है पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके जो कोलाइजन की गवर्नमेंट बनाती है, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर जो है आपका सही तरीके से जो है आप उनके साथ तालमेल बिठा सकें, आपके विचार उनके साथ मिल सकें। ऐसा पॉसिबल होना हर बार जो है ज़रूरी नहीं है। और 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में ना रह सकी। मीन्स की जो 1989 से अगर हम देखें तो हमने भारत में ऐसी काफ़ी सारी कोलाइजन गवर्नमेंट देखी हैं जिनमें
कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए भी सत्ता में नहीं रह सकी, क्योंकि उनके विचार ही नहीं मिलते, और जब विचार नहीं मिलते तो उनमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, और विवाद होगा तो सरकारें कैसे बनाने में सक्सेसफुल होंगी। तो ऐसे में जो है उनकी टाइम से पहले जो है सरकारें टूट जाती हैं, और बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या भी हटा देगी। और जब बहुमत नहीं होता है, मेजोरिटी नहीं होगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो या फिर वो अपनी मेजोरिटी को खो देंगे तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज क्या होता है, प्रभावित होता है। इनका काफ़ी इफेक्ट जो है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव पर आता है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी अपना कंटिन्यू रखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव ए गुड डे।